question for all of you. Have you ever seen your mother washing clothes using washing powder? So, what's there in the washing powder that helps in cleaning? When you're brushing your teeth with a toothpaste, what's there in the toothpaste that's clean your teeth? What's there in the glass cleaner that helps cleaning the glasses? So, all these cleansing agents have nothing but different types of bases. Yes, my children, these are different types of bases. So बेसिस को हम क्या बोल सकते हैं, मैंने क्लीनिंग चैंपियंस भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम फ्लोराइड रहते हैं. ये सब क्या है? दीज ऑल आर माइल्ड बेसिस एंड दीज हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स व्हिच प्रोड्यूस इन आवर माउथ आफ्टर हैविंग मील्स. What's there in the soap? Bathing soap. It's a base, right? It has sodium hydroxide and potassium hydroxide. That's again a base and helps in cleaning and removing the dirt. So what are they doing in our mouth? They are cleaning the acids, they are neutralizing the acid. And what are they doing when we are bathing? They are cleaning all the dirt. Antacids, do they help? Have you ever experienced indigestion, acidity? So what do we all have? We usually have a suspension of magnesium hydroxide to what we called milk of magnesia. So ये क्या कर रहा है? What is it doing? It is neutralizing the acid which is producing in our stomach. So ये, don't you think these are very important in our life and helping us in many things? मम्मा जब केक बनाती है, what makes the cake fluffy and soft? That's again a base. So bases are everywhere. Chemistry is not only confined within your pages of your books or your reading content. Chemistry is all around in your bathrooms, in your kitchens, in your cleaning accessories. So everywhere. So baking soda is nothing but sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, which makes the cake fluffy and soft. तो आपने कहाँ कहाँ bases देख लिए? It's there for cleaning. It's there to make things fluffy. It is also fighting against the germs. It is also neutralizing the acids in our stomach. It is also neutralizing the acids produced in our mouth. So they are so very important. So hello class 10. Today we are going to start with the next topic of class 10, chemistry. That is chapter 2, acid bases and salts. Topic bases. सो बेसिक्स, अभी बेसिक्स मैंने अभी आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर एवरीवेयर एंड दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सोपी टू टच एंड बिटर टू टेस्ट. बिटर मीन्स कड़वा. हमने एसिड्स पढ़े थे, एसिड सॉवर. सॉवर मतलब क्या होता है? खट्टा. एंड बिटर का क्या मतलब होता है? बिटर का मतलब होता है कड़वा, राइट? सो इफ यू taste baking soda or they all taste bitter. How do you come to know that given substance? So we have learned the indicators as well. So bases always turns the red litmus to blue and they work chemically opposite to acid. तभी ये सक्सेसफुल है हमारी टीथ क्लीन करने में, तभी ये सक्सेसफुल है हमारी इनडाइजेशन को क्योर करने में. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जिस वजह से दे आर केमिकली ऑपोजिट टू एसिड. और हम इन्हें क्या बोलते हैं? We call them antacids. We call them antacids. So here we have that metal hydroxide बोलो, metal oxides बोलो, metal carbonates बोलो, they all are bases. ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे bases हैं. And somewhere or the other they are helping us in making our life so super easy. What's the best friend of a painter painting walls of your kitchen? Again a base, that is slaked lime, calcium hydroxide. So slaked lime क्या करता है? It, when slaked lime it reacts, it gives a shiny texture over the walls of your house. So हुआ कि नहीं हुआ? पेंटर्स का बेस्ट फ्रेंड, एब्सोल्युटली राइट. सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है. बट अभी तो आपने मैम बताया कि मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स और मेटल कार्बोनेट से बेसिस होते हैं. बट ऐसा तो नहीं है. साइंस जहां बहुत सारी रेगुलरिटी दिखाती है, वहां एक्सेप्शंस भी दिखाती है. सो हियर इन द लिस्ट ऑफ ऑल मेटल ऑक्साइड्स, hydroxides and metal carbonates, we have non-metal hydroxide, which is nothing but ammonium hydroxide, NH4OH.
और आपको पता है ये कहाँ काम आता है? ग्लास क्लीनिंग में। जितने भी ग्लास क्लेंजर्स होते हैं उसमें क्या रहता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहता है। तो दो ऑल आर द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हेल्प इन क्लीनिंग द ग्लासेस। तो आप देख रहे हो, राइट फ्रॉम क्लीनिंग योर ओन बॉडी, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एसिडिटी, it is helping in many more places. Washing your clothes, cleaning your teeth, curing you from acidity, shining up your walls, making your cakes fluffy. So they are so very important in our life. Now we'll understand it more by learning the categorization. अब इसके हम थोड़ा सा categorization समझते हैं, इसका classification समझेंगे. How do we classify the bases? So we majorly classify the bases into two major categories. First, based on the solubility, कि ये water soluble है या नहीं है. Are they soluble in water or not? Second, on the basis of their ionizing capability. अब इनका मतलब क्या है? Solubility का मतलब है कि ये water, do they form an aqueous solution with water or not? Second, do they ionize completely or not? अब पहले हम solubility के behalf पर समझते हैं. Certain bases are soluble in water. So such bases are known as water soluble bases, and precisely in chemistry we call them alkalis. ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं बच्चा? वी कॉल देम alkalis. और कुछ जो बेसिस होते हैं वो insoluble in water होते हैं and they does not get dissolved. लाइक आपका कॉपर ऑक्साइड हो गया, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंट एसिड है, वो इनडाइजेशन को क्योर करता है एंड इट फॉर्म्स अ सस्पेंशन. एंड नाइन्थ ग्रेड में आप सबने बहुत अच्छे से सस्पेंशन पढ़ा हुआ है, इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन दी सॉल्वेंट पार्टिकल्स. सो ये कैसे बेसिस हो गए? ये इनसोल्यूबल बेसिस हो गए. बट मार्क माय वर्ड्स, दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज सुपर इंपॉर्टेंट to cure the indigestion. So we have both kind of bases, water soluble and water insoluble. Insoluble में हमारे पास क्या आ जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड आ जाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड आ जाता है. तो ये बेसिकली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं यही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं? दे फॉर्म मेटल हाइड्रो ऑक्साइड. ये क्या बना देते हैं? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं. गॉट इट? सो मेटल ऑक्साइड्स को भी हम एक बेस बोलेंगे और मेटल हाइड्रोक्साइड को भी हम एक बेस बोलेंगे. अब अगर इनके हम आयनाइजिंग कैपेबिलिटीज को कंपेयर करें, आयनाइजिंग कैपेबिलिटी का क्या मतलब है कि ये कितनी इजीली डिसएसोशिएट होने वाला है. आर इट will it be completely ionizing or will it be partially ionizing? क्या ये अपने सारे हाइड्रोक्साइड आयंस कंप्लीटली आयनाइज होके डिसएसोशिएट कर लेगा और रिलीज कर देगा, या फिर ये नहीं कर पाएगा? So both the cases exist, right? So certain bases undergo complete ionization, certain bases undergo partial ionization. तो जो base completely ionize हो जाते हैं, the such kind of bases are known as strong bases. ऐसे bases को हम क्या बोलते हैं? Strong base बोलते हैं, क्योंकि completely ionize होके बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को फर्निश करते हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट वीक बेस, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पा रहा है, ये डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या करेगा? ये बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयंस को फर्निश नहीं करेगा. तो अगर आप इनकी आयनाइजिंग कैपेबिलिटीज को कंपेयर करो, स्ट्रॉन्ग बेसिस की आयनाइजिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है ऑलवेज एज कंपेयर टू वीक बेसिस. एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हमेशा ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू वीक बेसिस. सो हियर आई हैव गिवन एन एग्जांपल दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड है, बट ये एक वीक बेस है. राइट? फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक वीक बेस है. तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं करते एंड दे डू नॉट dissociate into all hydroxide ions present into them. Right? So now moving ahead, we'll understand this. We have just now understood the
strong base or weak base, or we can also say that strong alkali or weak alkali. Now my class knows this कि जो base completely आयनाइज हो जाएगा वाटर में और large amount of hydroxide ions produce करेगा, वो क्या होगा? That will be a strong base. But जो base आपका weakly partially ionized है and that produces small amount of, यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, सो वो क्या होगा? वो कैसा होगा? वो एक वीक बेस होगा. So can you tell me weak bases? Yes, we can tell, ma'am. That is ammonium hydroxide and calcium hydroxide. Sodium hydroxide and potassium hydroxide are strongly ionized. तो अब अगर आपको कॉम्पिटेंसी लेवल का एग्जाम बनता है और उसमें क्वेश्चन आता है, तो वो आपको प्लेटर की तरह सर्व करके क्वेश्चन देंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस बताओ या वीक बेस बताओ. वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ये स्ट्रॉन्ग है, वो आपको दो बेसिस देंगे, वो आपसे कंपेयर करवा सकते हैं कि किसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा प्रोड्यूस होने वाले हैं या किसमें कम प्रोड्यूस होने वाले हैं, कौन सा कंप्लीटली आयनाइज कर जाएगा, कौन सा पार्शली आयनाइज करेगा. सो बेसिकली यू मस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट, along with that you must also learn how to apply that concept into the questions. Now moving ahead, what do all bases have in common? सारे बेसिस में कॉमन क्या होता है भाई? सारे एसिड्स में जैसे जब भी कोई एसिड डिसोसिएट हो रहा था तो हमेशा एक कॉमन आयन प्रोड्यूस हो रहा था, दैट वाज हाइड्रोजन आयंस. अब बेसिस के केस में क्या हो रहा है? जब भी आप एक बेस को स्प्लिट करोगे और इट विल अंडरगो आयनाइजेशन, इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द कॉमन आयन विच इज हाइड्रोक्साइड आयन. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, making it in when you're making an aqueous solution of it, it splits into sodium ions and hydroxide ions. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करोगे तो पोटेशियम आयन बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. मैग्नीशियम को स्प्लिट करोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो मैग्नीशियम आयंस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो सब एसिड्स के, सब बेसिस के पास क्या कॉमन रहता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस. एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आर वेरी स्पेशल. वाई? क्योंकि ये एसिड्स का तोड़ है, राइट? It breaks down the hydrogen H plus ions and it combines. आपको याद है न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? It was a war between. So the two are coming together. Neutralization reaction में they are fighting with one another, but it ends up on a peaceful note. They are producing a salt and water which are neutral in nature. So understanding ahead, we will now understand about the pH. अब हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे जो सिर्फ हमें ये बता रहे थे कि एक सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है. अब पीएच क्या है? इट इज प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, राइट? इट टॉक्स अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पीएच एक स्केल है, राइट, जिसपे आप मेजर कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी. Right. It is a scale which is used to measure the acidity or basicity of a substance. And this was first devised by Sorenson in 1909. And he had successfully articulated this, and we are able to tell whether a substance is highly acidic or weakly acidic, whether the substance is strongly basic or weakly basic, and it talks also about the neutrality of the substance. What do you mean by neutrality of a substance, children? Neutrality का मतलब होता है neither acidic nor basic. ना ही वो acidic है ना ही वो basic है. तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं पीएच स्केल की, सो पीएच स्केल पहले इसको समझते हैं कि हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट मूव. So pH scale starts from 0, it goes till 14, and 7th is a number right in between. 7 talk about the neutrality. 7 जो है वो एक न्यूट्रल नंबर है. जब भी कोई सब्सटेंस न्यूट्रल होगा मतलब वो एसिडिक भी नहीं है और वो बेसिक भी नहीं है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सब्सटेंस. सो 7 से जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये क्या रहता है आपका? Acidic. Right? When we are moving down in the number, then that means we are progressing ahead with the acidity. तो जितना आपका pH कम होगा उतना highly acidic होगा. Now moving ahead, right? When you're moving above 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, so जब आप आगे की साइड मूव कर रहे हो तो उसमें उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है. तो अब हम इसको कैसे कंपेयर करते हैं बच्चा? लेट मी एक्सप्लेन यू. pH is inversely proportional to
concentration of hydrogen ions. So हमने क्या लिया हुआ है, हमने हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेक की है, राइट? तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी डिक्रीज करेगी, एंड वाइस वर्सा, इफ इट इज डिक्रीजिंग देन द अदर वन विल इंक्रीज। तो अब इसके केस में अगर हम बात करते हैं तो जो पीएच है आपका, अगर पीएच का वैल्यू ज्यादा है तो दैट मीन्स हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब हाइड्रोजन आयंस क्या डिफाइन करते हैं, डिफाइंस द एसिडिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस उतना एसिडिक ज्यादा है, जितने कम हाइड्रोजन आयंस है उतना वो कम एसिडिक है, राइट? इन सिमिलरली एज टू जब आप न्यूट्रल पे आते हो, अब 7 पे वो कैसे बिहेव करता है, 7 पीएच नंबर का मतलब है, से having 7 pH means equal number of hydrogen ions and equal number of हाइड्रोक्साइड आयंस, राइट? पीएच 7 का क्या मतलब होता है, इक्वल नंबर, तो इसीलिए हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं। व्हेन वी हैव इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, और वाटर का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। सो इसीलिए जो वाटर है वो H प्लस और OH से बना हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं कि वाटर क्या है, न्यूट्रल है। Water is neutral in nature. More hydrogen ions means more acidic. Less hydrogen ions means it is going towards basicity after 7. Right, children? तो अगर हम इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, हम पीएच मीटर को रीड करना सीखते हैं चिल्ड्रन। लेट मी टेक यू हियर। So we have this table with us in which we can see the two. The green represents the neutral. If you are moving from yellow to orange to red, so red क्या होता है, वो बहुत ज्यादा इंटेंस कलर होता है, तो मतलब वो सब्सटेंस क्या है, हाईली एसिडिक। बट आप ग्रीन से ब्लू और ब्लू से डार्क ब्लू एंड पर्पल में जा रहे हैं, तो इट शोज दैट बेसिसिटी ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो अब आप पूछ सकते हैं कि मैम हमें कलर्स भी याद रखने होंगे। यस, आपको कलर्स का आइडिया होना चाहिए, बट प्रिसाइज आपको स्पेसिफिक एसिडिक कलर और बेसिक कलर याद ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए। इफ इट इज मोर ऑफ रेड टोन देन इट इज हाईली एसिडिक। सो जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं उनकी एसिडिटी 1 to 2 के बीच में आती है। वीकर एसिड लाइक एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इनके एसिडिक जो पीएच होता है इट कम्स बिटवीन 4 to 6, राइट? एंड जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस आते हैं वो आपके 13 14 में आते हैं। 10 11 12 वाले जो होते हैं वो आपके वीक बेसिस होते हैं। तो इंक्रीज इन, अब आप जैसे मूव करते हो, अब आप इसकी मूवमेंट को समझो। हम मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सी चिल्ड्रन, so we are moving from left to right. When we are moving from left to right, what is basically happening, the pH keeps on increasing. अब आपको अगर वो बेसिक फॉर्मूला पता, you know the relationship between pH, आपको pH और किसके बीच में, हाइड्रोजन आयंस के बीच में अगर आपको रिलेशन पता है, सो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी हाइड्रोजन आयंस की। और एग्जैक्टली एट द न्यूट्रल वैल्यू हियर चिल्ड्रन, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है हाइड्रोक्साइड आयंस के कॉन्सेंट्रेशन के। अब इसमें क्या होता है, इसमें राइट साइड पे जब हम मूव करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इट इज मोर देन हाइड्रोजन आयंस। और अगर आप लेफ्ट में देखते हैं लेस देन 0, तो हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस। सो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अच्छे से, and you will be able to cater any question which is based on pH scale. So आपको समझ में आया कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्यों है, क्यों वो एसिडिटी शो नहीं कर रहा, क्यों वो बेसिसिटी शो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर X हाइड्रोजन आयंस है तो X ही हाइड्रोक्साइड आयंस है, और वो दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंड
on the pH meter less than 7, हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस, और राइट साइड पे हाइड्रोक्साइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयंस। इसीलिए जो लेफ्ट साइड है वो कौन सा बिहेवियर शो करती है, एसिडिक, और जो राइट साइड है वो कौन सा बिहेवियर शो करती है, बेसिक। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते हो पीएच में, तो कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा होता जाता है हाइड्रोजन आयंस का, तो एसिडिटी भी बढ़ती जाती है। और जब आप बेसिक के साइड पर आगे मूव करते हो तो हाइड्रोक्साइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। I hope this is clear to all of you. You know now very well about pH. Just note down all the points while I teach you. जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो आप वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको एनालिसिस के फॉर्म में दिए जाते हैं वो आप नोट करिए, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू एड्रेस योर एमसीक्यूज, assertion, reason, and any critical thinking based question. So here, children, we are having we are going to learn, is the pH important in farmers life? Absolutely right. pH is so very important in any farmer's life, because to get the good yield of the crop, अगर हमें crop का good yield चाहिए, हमें healthy soil चाहिए, तो एक healthy soil का pH कैसा होना चाहिए, always neutral, that means 7. अगर soil acidic हो जाएगी then it is problematic, अगर soil basic हो जाएगी then it is problematic, right? So soil must not be too acidic, soil must not be too basic, right? So अब क्या करें, अब everything is not in our control. If soil goes acidic, then what will happen? If soil goes basic, then what will happen? Wrong pH will hinder the plant growth and results in lower yield, right? अब ये क्या होता है, कैसे pH imbalance आ जाता है? That is due to these wrong practices like excessive use of fertilizers. Fertilizers are chemical supplements which are given to the soil, and too much of fertilizers increases the acidic nature, increases the excess acid into the soil, right? So this is how it causes the imbalancing in the pH of the soil. What will happen if soil is getting basic? That is due to the exposure of sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. अगर सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कंटेंट सॉइल में इंक्रीज हो जाता है, देन द सॉइल गोज बेसिक. The treatment is very simple. Now we learn about the treatment, children. So farmers were using wrong practices, excessive use of fertilizers. So sometimes the fertilizers are too much acid based, so increases the acidity. Some fertilizers are too much basic based, so they increases the basicity or alkalinity of the soil. So that if the soil pH goes below 7 or above 7, then in both the cases, the soil will lose its fertility. Hence, it hinders the plant growth. Basicity वाले केस में majorly क्या notice किया जाता है? Basicity वाले केस में बच्चा, जो plants हैं, they fail to absorb the nutrients. प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो जब वो न्यूट्रिएंट्स ही एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, दे वोंट बी एबल टू ग्रो वेल, राइट? देन देयर विल बी अ पुअर यील्ड. अब सॉइल एसिडिक है, और तो अब हम क्या करेंगे, विल यूज द बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट. और अगर सॉइल बेसिक है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द acids to neutralize its effect, right, children? So here we are going to treat it with the calcium oxide, calcium hydroxide. This is CaOH whole twice is a mistake, and it neutralizes the acid. Right? ये acid को neutralize कर देता है. So here children, अब एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फिर से सॉइल का पीएच कितना रिटेन हो जाएगा, द पीएच विल बी the pH will be 7 again, and hence it starts supporting the plant growth, leads to higher yields. Similarly, basic है तो आप एसिड के साथ रिएक्ट करो, ट्रीट इट विद एसिड लाइक पायराइट्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं. अब पायराइट्स में क्या रहता है, पायराइट्स इंक्रीज, pyrites basically give too much of pyrite will make the soil acidic. But yes, if the soil goes basic, अब वो basic वाले कौन सा केस होगा, जब
फर्टिलाइजर्स यूज कर लिए हैं, और देर इज लेस ऑफ रेन. सो लेस ऑफ रेन की वजह से क्या होता है, द वाटर रिमेन्स देयर इन विद इन द सॉइल सम वाटर, and the calcium and magnesium ions forms the bases, start forming the basic compounds like calcium hydroxide and magnesium hydroxide. So too much deposition of these compounds leads to the formation of basic soil. So we have to treat them with acids, hence making the soil balanced. So that's all about today's class. We have learned about the topic bases and pH scale. And in bases, we have understood the classification of bases on the basis of solubility and ionization. We have also learned about their behavior, right? So pH scale basically tells us about the basicity and acidity of a substance, how strongly acidic a substance is or how weakly acidic. Likewise, how strongly basic and how weakly basic the substance is. Always connect these concepts with your day-to-day life. What's there in your toothpaste? Remember when your mother is putting your clothes for the laundry. Always keep in mind when you're spraying the glass cleaners, which base is there? Ammonium hydroxide. Which base is there in your washing powder? Sodium carbonate. So ये छोटी छोटी सी चीजें जब आप अपनी डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करोगे, you will never forget these things, because आप ये नहीं बोल रहे हो कि my mama is putting a washing powder. You say my mama is putting a compound of sodium carbonate to wash the clothes. The glass cleaner have ammonium hydroxide. The ammonium hydroxide is responsible for cleaning the glasses. What's there in my toothpaste? What's there in my bathing soap? It's a hydroxide salt of sodium and potassium. So this way, when you connect your chemistry with everyday life in whatever activities you are doing, you'll never forget these things. So today you're going to revise the topic very well and keep practicing the